السلام علیکم کی حال امید کرتا سارے ٹھیک ٹھاک ہوں کہ سارے کا ویلکم ہے اپنے کیسے کیتے بلال سے سویر دا ٹائم ہے دھڑ شہر آپ کھڑ رہی آپ چلے ہوں کماد لین اج کا تمہیں دسنا کہ اج کا دن ساڈا کیویں جاندا اج دن ساڈے کول ڈاکٹر آ رہے ہیں بہت ہی اچھے میٹرو فیڈز والے نے کچھ انہوں دی تھوڑی گلاں چلن دساں بھئی او کی کہندے ہیں کی پروڈکشن ہے انہاں دی انہوں کو بڑے اچھے فارمولے سن کے جرمنی دے ڈاکٹر ہیں تے آپاں بھی انہاں نال ادھر اپنا ڈنگر کر رہے ہیں ریسٹ ادھر اپنی کٹی پئی ہے ستی ادھر اپنے میمے پہ کھیڑ دے اے شیطان چلا شیطان کی ہویا مست ہوئی پئی دودھ پی کے نا ادھر اپنی بکریاں آپاں چلنے ہاں جس سائڈ تو بھی انہیں سیدھا ماں تھلے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں اور انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں نوں سدھارن لئی بالکل تسی سمجھ لو کہ ہے بہت بڑا رسک اگر اسی کریے تے اگر اسی جے ول دیکھیے تے فری آف کاسٹ وہ غلطیاں اسی دور کر کے اپنی دودھ کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں اپنے جانور کی صحت بڑھا سکتے ہیں وہ سوا نیڑے لیا سکتے ہیں اس لیے کچھ وہ چیزاں نے میں کہ بھی جڑے نکراں تے جنہوں نظر نہیں آتی اگر سکرین نظر نہ آئے تو کائنڈلی وہ ادھر کتے فرنٹس تے آ جائیں سو دیٹ دے کین لسن دے کین ہیئر ود انفارمیشن پتہ کوئی نہیں وہ بھی رین ویکسینیشن کے دور پہ 100% جو ہے وہ گلگوٹو کی ایچ ایس کی ہے سی سی پی پی کی بکریوں میں چھٹی آ جاتی ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام میں کر دیں کہ تلاوت قرآن مجید کو شروع کر دیں کہ ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کتاب قرآن مجید کو پڑھیا جائے سنیا جائے کہ وہ تو غور کیا جائے بجائے واسطے کہ اسی گلا باتیں سمجھی میں خود ہی سعادت حاصل کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
لقد أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے اے سید تیری اور اس حکمت سے بھرے قرآن کی، بے شک تو رسولوں میں سب سے افضل ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور یہ سب کچھ تیرے رحیم رب کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان قوموں کے آباء و اجداد کو بتلاؤ جو غفلت میں پڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے اکثر پر تیری بات میرا قول پورا ہو چکا ہے مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہی فرما ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید دے چند آیات دی تلاوت تو بعد میرا اپنا دل کرتا چونکہ رمضان کریم بھی آمدہ تے وہ ایک شعر خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. صرف 2 شعر تے درود پاک سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جگہ کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جگہ کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. میرے نبی رحمت تھی پورے جوش پر اور میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. میرے نبی پیارے نبی. پروگرام دا باقاعدہ آغاز جیسے کہ تمہیں پتا قرآن مجید فرقان حمید دی آیات میرے پیارے سونے نبی دی تسبیح نال دے نام دے نال ہو چکیا. اج دا اپنا ایتھے اکٹھے ہون دا ایک مقصد آ کہ دیکھو اسی صبح تو شام تک اتنی محنت کری دیا، مطلب کورس لائی دیا، پیسے خرچ کری دیا، جانوں دے اوتے محنت کری دیا، لیکن میرا سوال ہے کہ قائد اعظم دی دور یعنی جدن دا پاکستان بنیا اور اج تک اسی وہی 10 کلو مچتے ہیں. ساڑی پاکستان پورے ملک دی ایوریج 10 کلو نہیں ہے. وائی اور وہ قوماں جنہاں نو اسی کافر کہتے رہے وہ آج 60-70 لیٹر تے نکل گئی ہیں کہ اسی آج 10 کلو ہیں. وہ دے وچ جیڑی ساڑی کو نگلیجنس ہو جاندی نے، یعنی کہ ساڑیاں اپنیاں نگولیاں کہہ لو یا اسی توجہ نہیں پراپر دے سکتے، وہ آج اسی انہوں نے تھوڑا کرنا. وہ دے وچ سب تو پہلے میں تھوڑا جا تعارف کرا دا. میٹرو فیڈز اینڈ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی لوگ میں تشریف لے ہیں. میرا نام ڈاکٹر اظہر اقبال ہے اور جتوں ساڑے سر ڈی ایل او صاحب انہوں نے ڈگری کی تھی ٹی وی ایم دی، میری ڈگری بھی یہ میرے تو کوئی 4-5-6 سال سینئر ہے. میری ڈگری بھی اتھوں دی ازہری یونیورسٹی فیصل آباد تو ڈی وی ایم دی
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾੜੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਥਣਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਐਮਫਿਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ PhD ਹਮੋਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕरें। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਐਨੀਮਲ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਟਰੋ ਫੀਡਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ CEO ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि इस लेवल की न्यूट्रिशन, इस लेवल की फीड बनाई जा सके ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ में ਜੀ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾੜੂ बेसिकली दो किस्मां च पाया जाता है। एक वो साड़ू जिहड़ा तुहानूं नजर आ जाता है, पाड़ पे सोच, पाड़ समझ जिहनूं सोच कहंदे, चड्डा सोच गया, थण सोच गए, या इस तरह दुध चोया विच पीप आ रही है, छिड़ियां आ रही, खून आ रहा, ठीक है जी। ये ज़ाहरी साड़ू है, इहनूं कहंदे आ क्लिनिकल मैस्टाइटिस, नजर आने वाला साड़ू। एक ऐसा साड़ू है जिहड़ा इस तो पहले पैदा, उन्हें मख्फी सोजिशे हवाना कहते हैं उर्दू च, छुपिया होया जिहदा पता ही नहीं लगता, ਉਹਦਾ पता ही नहीं लगता। और पता कितों लगता जो अचानक जनाब पड़ पै गई, छिड्डी आ गई, थण सुच गए, चड्डा इन्ना सुच गया, उदों फिर असीं हज़ारां रुपया लगा के ठीक करते हैं। मैं अज दसना यह चाहांगे अगर इनू असीं उस स्टेज ते फड़ लईए जिथे पता नहीं लगता ते पता लाना किवें, वो इंशाअल्लाह उत्ते एक वीडियो भी तैयार की है DRDF की। और कुछ लोग ना जी, कुछ लोग हले भी बहुत सारे 70-80% लोग तुहाडे जट भरा, साडे जट भरा, साडे बुजुर्ग समझते थे कि जिहड़ा साड़ू है बंडियां की वजह तो पैदा, बहुत माइन्यूट जे समझ लो 5-7% जिन्हां बंडियां चीज़ां उल्लियां लगियां होण, बहे होण, गुस्से होण, या गंदे टुकड़े असीं इस्तेमाल कर लिए उल्लू वाले, उल्ली समझदे हो ना, इन्हां चीज़ां तो साड़ू पै सकदा, लेकिन वो भी कुछ टाइम लैंदा। बाकी जिन्ना साड़ू आ सारा जरासीमी साड़ू हुंदा। वो एक वीडियो DRDF दी मैं चलावांगा, तुसी उस वीडियो नूं गौर नाल सुनिया जे और देखिया जे भी, इंशाअल्लाह तो तुहानूं की पैगाम मिलदा। मैस्टाइटिस दी वीडियो थोड़ा जिहा इधर हो जाओ अगर नजर ना आए। पहले तैतावला आ गए हैं। यूं तो मवेशियों को बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं, मगर एक बीमारी जिससे मवेशी को बचाना बहुत ज़रूरी है वो है मस्टाइटिस यानी सोजिश हैवाना। हम आप इसे साड़ू के नाम से भी जानते हैं।
दरअसल यह बीमारी मवेशी के थनों की सोजिश है, जिसके नतीजे में मवेशी के दूध की पैदावार कम हो जाती है। और आप जानते हैं, दूध कम तो मुनाफा कम। सबसे पहले हम देखते हैं एक मवेशी में साड़ू की किस्में क्या होती हैं। एक तो होता है ज़ाहिरी साड़ू और दूसरा पोशीदा साड़ू। देखते हैं ज़ाहिरी साड़ू की अलामतें क्या हैं। हैवाने पर अचानक सोजिश, हैवाना गर्म और सुर्ख हो जाना, हैवाने को छूने से जानवर का दर्द महसूस करना, जानवर को बुखार भी होना, दूध में पीप, खून और छिछलों का नमूना होना, दूध की रंगत और शक्ल में तब्दीली से बज़ाहिर कोई अलामत नजर नहीं आती, मगर खतरात अपनी जगह लाहक होते हैं। पोशीदा साड़ू की अलामतें भी पोशीदा होती हैं। इसके अलावा पोशीदा साड़ू थन में नाड़ पैदा करने में बड़ा किरदार अदा करता है। सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह के जरासीम हैं जो साड़ू का बाइस बनते हैं। ये हैं 3 तरह के जरासीम। नंबर 1 माहौलियाती जरासीम, नंबर 2 छूने वाले जरासीम और नंबर 3 मौका परस्त जरासीम। माहौलियाती जरासीम मवेशी के इर्द गिर्द होते हैं, मसलन गोबर, कीचड़ और पराली वगैरह। जहाँ से ये जरासीम थन के सुराख में दाखिल होकर साड़ू का बाइस बनते हैं, बीमार हो जाता है। जबकि छूने वाले जरासीम मवेशी को आम तौर पर टुवाई डंडी वाले के गंदे हाथों से लगते हैं। मौका परस्त जरासीम तो जैसे मौके की तलाश में रहते हैं। मसलन अगर किसी भी वजह से हैवाने पर या थनों पर जख्म हो तो माहौलियाती जरासीम को मौका मिल जाता है और वो यूं मवेशी के थनों में दाखिल हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि मवेशी को साड़ू की कौन सी किस्म लाहक है। तो पहले हम पोशीदा साड़ू की तशखीस करते हैं। इस टेस्ट के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें दरकार हैं। कपड़े धोने वाले पाउडर का 45 ग्राम पाउडर, महलूल बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी की बोतल और 4 प्यालियां। अब हम शुरू करते हैं तशखीस के लिए महलूल बनाने का तरीका। कपड़े धोने वाले पाउडर में से 45 ग्राम पाउडर 1.5 लीटर पानी की बोतल में मिलाएं। और अच्छी तरह बोतल को हिलाएं और ये 3% महलूल तैयार हो गया। जानवर के किसी एक थन से दूध की चंद धारें प्याली में डालें और तकरीबन उतनी ही मिकदार में महलूल को उसमें मिला दें। अब प्याली को अच्छी तरह हिलाएं और बगौर देखें। अगर दूध की शक्ल और रंगत बदल गई है, इसका मतलब है मवेशी को साड़ू है। तो फिर भी शुबा हो तो वाज़ेह यकीन करने के लिए इस दूध को कच्ची और साफ जमीन पर उंडे लें। अगर छिदियां नजर आए तो थन में साड़ू पक्का है। इसी तरह हर थन के लिए अलग अलग साफ प्याली में ये तरीका दोहराएं। अगर दूध की रंगत और शक्ल ना तब्दील हो तो मतलब थन साड़ू से महफूज है। पोशीदा साड़ू जांचने के लिए आप अपनी मवेशी में ये तरीका हर महीने में 2 बार दोहराएं। पोशीदा साड़ू चेक करने के लिए आप चाहें तो तैयार शुदा महलूल का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में 3MP किट के नाम से दस्तयाब है। पोशीदा साड़ू का इलाज निहायत सस्ता और आसान है, लेकिन मुनासिब तवज्जो न होने की सूरत में ये ज़ाहिरी साड़ू की खतरनाक बीमारी बन सकता है। और अब बात हो जाए ज़ाहिरी साड़ू की। सोते ज़्यादा हिस्से पर दर्द होने की वजह से जानवर को हरकत करने में, खास तौर पर बैठने में तकलीफ होती है। पूरा हैवाना या कोई भी मुतासरा थन बवाए झिल्ली सोजिश के बायस सख्त और कई गुना बड़ा हो जाता है। अपनी इंतहाई शक्ल में वर्मज़दा थन से दूध की कुदरती हालत तब्दील हो जाती है। दूध की फुटकियां और चिड़ियां भी बन जाती हैं। दूध पतला और जर्दी माइल हो जाता है और बाज़ औक़ात दूध में खून भी आता है। जानवर को बुखार हो जाता है और दूध की पैदावार कम हो जाती है। बीमारी बढ़ने की सूरत में फुटकियां और छिड़ियां अक्सर थन के मुंह को बंद कर देती हैं। हासिल शुदा दूध निहायत नमकीन और बदबूदार हो जाता है।
सोजिश हैवाना की इस शदीद हालत को अंग्यारी भी कहा जाता है। अगर आपके जानवर में इनमें से कोई एक अलामत या अलामात मौजूद हैं तो फौरी तौर पर अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से रजू करें। और अब हम जानेंगे साफ बचाव के तरीके। चुवाई से पहले दूध दोहने वाला अपने हाथों को अच्छी तरह धो ले। दूध दोहने से कबल जानवर के हैवाने को धोकर खुश्क कर लें। यकीन कर लें कि जानवर बैठने की जगह साफ हो। अंगूठे को अंदर मोड़कर दूध की चुवाई ना करें। चुवाई का सही तरीका इस्तेमाल करें। मुतासरा थन को सबसे आखिर में छुएं ताकि बीमारी दूसरे थनों तक ना पहुंचे। चुवाई वाले बर्तन और मशीनों की सफाई का खास ख्याल रखें। दूध धोते हुए थनों को दूध के झाग, मक्खन या घी से हरगिज नरम न करें, क्योंकि ऐसा करने से साड़ू के जरासीम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। चुवाई के बाद यकीन कर लें कि किसी थन में दूध ना रह जाए। चुवाई के बाद थनों को जरासीम कुछ दवाई में डबवाएं। चुवाई के फौरन बाद जानवर को खुराक दें ताकि वो नीचे बैठने से करें। जानवर पर साड़ू की जरासीमी हमले रोकने के लिए थनों को महलूल में डबोने का अमल बहुत मुफीद है, जिसका तरीका ये है। थनों पर लगाने वाले महलूल या जख्म पर लगाने वाली दवाई को पानी की मुनासिब मिकदार में हल करके एक कप में डालें। चुवाई के फौरन बाद थनों का 3/4 हिस्सा 1 से 2 सेकंड के लिए इस महलूल में डुबोएं। चुवाई के बाद थनों को डुबोने के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बाजार से बआसानी दस्तयाब हैं। इस महलूल की वजह से थन के सुराख पर एक झिल्ली बन जाती है जो जरासीम को थन के अंदर जाने का रास्ता नहीं देती। महलूल जरासीम को मार देता है और थन की जिल्द को सेहतमंद रखता है। अपने जानवर को साड़ू से बचाने के लिए चंद दूसरी अहम चीजें भी जहन में रखें। मसलन जानवरों को गैर मुतवाज़न खुराक, मसलन नमकियात या हयातीन की कमी से भी साड़ू का खतरा लाहक होता है। जानवरों को फफूंदी लगी खुराक हरगिज ना दें। जानवर के थन में कोई नोकदार चीज या मुर्गी का पर वगैरह दाखिल ना करें। मुंह खुर की बीमारी के बाद साड़ू का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि थनों पर जख्म और छाले बन जाते हैं। लिहाजा पोशीदा साड़ू को वक्त से कंट्रोल करें, इससे पहले कि वो ज़ाहिरी साड़ू बनकर आपके मवेशी के दूध की पैदावार और मुनाफे में कमी की वजह बन जाए। मवेशी को साड़ू से बचाने के लिए जो तरीके हमने आपको बताए हैं वो आसान होने के साथ साथ कम खर्च भी हैं और रवायती तरीकों के निस्बत ज़्यादा मौसर हैं। याद रहे, DRD या डेयरी फार्मर गाइड आपके डेयरी फार्म की तरक्की और वहाँ पे मौजूद मवेशियों को बीमारी से महफूज रखने के लिए मौसर इक़दाम तजवीज़ करती है, ताकि आप दूध की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। तो फिर अपने मवेशियों की देखभाल अभी और आज, क्योंकि एहतियात है बेहतरीन इलाज।